A very good morning to all the students. I am Reema Sandhu, Assistant Professor in Computer Science. Today I am going to teach you about the topic computer software and different types of computer software. So, students, what you will learn after going through this topic, that what is software and what are the different categories of software available. So students, can you define what is software? Software is the set of instructions that tells the hardware what to do. So software in technical language is the non-tangible component of the computer that we can only see but we cannot touch. Software tells the hardware what to do. Without software, the hardware cannot run because software is the instructions that we impart to the computer. Basically, we define the software into two categories. One is your system software and second one is your application software. The third one is enterprise application software, which is a new term which I'll explain it to you in the later slides. So students, first of all, we start with what is system software. System software is the software which controls the internal programming of the computer system. It makes the hardware run. System software is designed for a specific task. It will be used for that purpose only. You cannot use that software for a multi-purpose way. सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो हैं ये कंप्यूटर सिस्टम की फंक्शनैलिटी को इलेबोरेट करते हैं, कंप्यूटर को फास्ट बनाते हैं, इफ़ेक्टिव बनाते हैं और सिक्योर बनाते हैं. एग्जाम्पल सिस्टम सॉफ्टवेयर्स जो कि हम लोग डेली यूज़ करते हैं, वन इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. Second are your programming languages through which we impart instructions to the computer, and third is the communication software available. जो सेकेंड टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं वो आपके पास हैं लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स. लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो हैं वो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करते हैं. Now the term is what is high level language and what is low level language. High level language वो है जो कि यूज़र कंप्यूटर को के साथ इंटरेक्शन में यूज़ करता है, और लो लेवल लैंग्वेजेस जो होती हैं जो कंप्यूटर की जो मशीनरी है वो अंडरस्टैंड करती है. तो आप सब ने जो है ये सुना होगा कि कंप्यूटर को दो ही जो वर्ड्स हैं वो समझ में आते हैं, एक ज़ीरो और एक वन. सो टू इम्पार्ट द इंस्ट्रक्शंस द कंप्यूटर नीड्स टू understand only 0 and 1. So the language translators perform this task. They take instructions from the user in high level language and translates them into low level language, that is the language of zeros and ones. सेकेंड जो हैं वो हमारे पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स हैं. So students, do you understand what is an application? Do you know what is an application? Application software is that which is designed to accomplish some goal or purpose. They are made for a specific application and the user can use it for that particular application only. Like you have your railway reservation system which can be used for the booking of e-tickets of railways, flight reservation system.
Then there are other softwares which can be used for that purpose only. In application softwares, we have three categories. One is your productivity software, one is your utility software, and third is your programming software. The categories will be defined in the later slides. The third type of software is your enterprise application software. So, students, do you know what is an enterprise? Enterprise is an organization, and enterprise application softwares are those which are made commonly for one enterprise, and people along one organization can use the same software to accomplish the functions so that the work can be integrated. As you can see from the definition, enterprise resource applications were developed to provide a common application that supports functions across the entire enterprise for the company's employees. That is, all the organization employees, they can interact, they can see the information in a uniform manner. So now I am going to elaborate the different kinds of softwares. So the first type of software which I am going to take is a system software. So all of you know that system software is needed to make the hardware run. So what is the difference between a simple software and a system software? System software is made by the manufacturer, and we cannot do changes into it in our own way. So, as I have said, there are different types of system softwares available. The first one is operating system. So, students, do you know what is an operating system? You might have heard about Windows, Linux, Unix, right? Macintosh. There are different types of operating systems available. By using the operating systems, you interact with the computer. So basically, to load any application into your system, you need a base, and that base is the operating system. When you start your computer, the process starts, and that process is the loading up of operating system into the main memory of the computer. So when the operating system is loaded into the main memory of the computer properly, only then you can work with the computer. तो जो भी हमारी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस हैं सबका ऑपरेटिंग सिस्टम है, और ऑपरेटिंग सिस्टम्स जो हैं ये हार्डवेयर को मैनेज करते हैं. जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जितनी भी आपकी इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको चेक करता है कि वेदर दे आर वर्किंग प्रॉपरली, एंड इफ़ दे आर नॉट वर्किंग प्रॉपरली इट विल शो यू द एरर मैसेज. तो मेन जो फंक्शंस हैं ऑपरेटिंग सिस्टम्स के वो क्या हैं? फर्स्ट इज़ मैनेजिंग द हार्डवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर. सेकेंडली, यूज़र के बीच में और हार्डवेयर के बीच में एज अ मिडल मैन और एज अ इंटरफेस एक्ट करना, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें कि हम डिफरेंट एप्लीकेशंस जो हैं वो राइट करें. अगर हम ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में नहीं लोड करता है सिस्टम, तो फिर आपका सिस्टम जो है वो स्टार्ट नहीं होगा और आप उस पर काम नहीं कर सकते. तो डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स हमारे पास हैं. द मोस्ट कॉमन वन विच यू यूज़ इज़ द माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़, एप्पल
आई थिंक यू ऑल हैव हर्ड अबाउट द एप्पल कंपनी, और उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है दैट इज़ मैकिन्टॉश और लाइनक्स, यूनिक्स. There are different versions of operating systems available in the market today. Second type of system software is translator. ट्रांसलेटर्स, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है. तो इसके लिए हमारे पास 3 तरीके के ट्रांसलेटर्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. वन आर योर कंपाइलर्स, सेकंड आर योर असेंबलर्स, और थर्ड होते हैं इंटरप्रेटर्स. कंपाइलर्स क्या करते हैं? ये भी हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं. लेकिन कैसे कन्वर्ट करते हैं? ये सारा का सारा कोड एक बार स्कैन करते हैं और उसको ये एक ही बार में लो लेवल प्रोग्रामिंग कोड में ट्रांसलेट कर देते हैं. और जो असेंबलर्स जो हैं ये यूज़ होते थे आपकी जब असेंबली लेवल लैंग्वेज यूज़ होती थी. जो असेंबली लेवल लैंग्वेज है ये सिंबल्स और निमोनिक्स को समझती थी. इसमें जो है वो यूज़र को सिंबल्स को याद करना होता था, और जब सिंबल्स जो हैं वो सिस्टम में फीड कर देती किए जाते थे तो दीज सिंबल्स वर कन्वर्टेड इनटू बाइनरी लैंग्वेज ऑफ 0 and 1. तो असेंबली लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर्स का यूज़ किया जाता था. थर्ड आर योर इंटरप्रेटर्स. इंटरप्रेटर्स भी सेम हैं कंपाइलर्स जैसे. ये भी हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन लाइन बाय लाइन. एज आई हैव टोल्ड यू कि जो कंपाइलर्स हैं दे कन्वर्ट द हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन वन गो एट वंस. लेकिन जो इंटरप्रेटर्स हैं वो कैसे कन्वर्ट करते हैं? लाइन बाय लाइन. अगर एक लाइन में एरर आएगा तो उस एरर को वो डिबग करेंगे. डिबग करने के बाद यूज़र उनको करेक्ट करेगा और उसके बाद जो है आपकी नेक्स्ट लाइन की स्कैनिंग होगी. थर्ड जो है, अब आपको मैंने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनकी इंट्रोडक्शन दी थी, और उसके बाद मैंने आपको एंटरप्राइज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स के बारे में बताया था. तो अब मैं आपको बताऊंगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच में क्या डिफरेंस है. तो सबसे पहला जो डिफरेंस है सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन उसके लिए सॉफ्टवेयर में, जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है इट कोऑर्डिनेट्स इंस्ट्रक्शंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर. हार्डवेयर को जो चलने के लिए इंस्ट्रक्शन देगा वो कौन सा सॉफ्टवेयर देगा? सिस्टम सॉफ्टवेयर देगा. और एप्लीकेशन जो सॉफ्टवेयर्स हैं, प्रोग्राम्स आर दैट आर यूज्ड टू कंप्लीट द टास्क्स, जो कि हम एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए बनाते हैं. दैट इज़ योर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. और सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूटिलिटी प्रोग्राम्स, डिवाइस ड्राइवर्स, जो कि आपने देखा होगा जब आप सिस्टम अपना इंस्टॉल करते हो तो ऑपरेटिंग सिस्टम भी उसके साथ आता है, डिवाइस ड्राइवर्स भी साथ आते हैं. और यूटिलिटी प्रोग्राम्स जैसे आपकी बैकअप फैसिलिटी, टेक्स्ट एडिटर, एंटीवायरस और डिस्क डीफ्रेगमेंटर, ये सारी की सारी जो यूटिलिटीज़ हैं ये भी आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं. तो ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर्स हैं. और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स, जैसे आप देखते हो कि आप कोई बुक खरीदते हो तो आपके पास उसके साथ एक सीडी आएगी, तो दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कोई आप मूवी देखते हो, दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. कोई आप पर्सनल सॉफ्टवेयर बनवाते हो अपनी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, दैट इज़ एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड what is system software and what is application software. So these are
different types of application softwares which are available. Like you have word processing software. So students, all of you know that you use Microsoft Office. In Microsoft Office you have Microsoft Word, ठीक है, which is a word processing software. Not only Microsoft Office, you have different word processing softwares, like you have LibreOffice, which is an open source software available. और इन वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स का क्या काम होता है? हाँ, एक डॉक्यूमेंट को क्रिएट करना और उसमें हम मल्टीपल टाइम्स जो है एडिटिंग कर सकें. तो वर्ड प्रोसेसिंग के अंदर जो काम हम मैन्युअली लिख के करते हैं उसको हम ऑटोमेटेड वे में कर सकते हैं. और इसमें क्या क्या फीचर्स होते हैं वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में? एक तो हम मल्टीपल कॉपीज़ जो हैं वो निकाल सकते हैं और मल्टीपल टाइम्स जो है हम एक ही सॉफ्टवेयर को, एक ही डॉक्यूमेंट को चेंज कर सकते हैं. हमारे पास बहुत सारे फॉर्मेटिंग फीचर्स हैं, लाइक फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज, फिर थीम, विच वी कैन यूज़ टू इंक्रीज द रीडेबिलिटी ऑफ द डॉक्यूमेंट. फिर हम ग्राफिक्स का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि हम उसमें अपने डॉक्यूमेंट में पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, कोई क्लिप आर्ट जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं. और हमारे पास अलग अलग टेम्पलेट्स हैं कि हम उस डॉक्यूमेंट को अलग अलग वे में प्रीव्यू कर सकें, जो भी हमारे पास टेम्पलेट्स अवेलेबल हैं. इसमें आपको उसने एग्जांपल दिया है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में कोरल वर्ड परफेक्ट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और एक लिब्रे ऑफिस. बहुत सारे जो हैं हमारे पास पेड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर्स हैं और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि नेट में फ्रीली अवेलेबल हैं, जिसको यूज़ करके हम अपना टाइपिंग जो वर्क है उसको कर सकते हैं. सेकंड आपका स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है. स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर जो है वो हमारी कैलकुलेशंस और न्यूमेरिकल एनालिसिस के लिए यूज़ होता है. आप सभी ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंदर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का नाम सुना होगा. तो एक्सेल में हम क्या काम करते हैं? जो कि हमारा अकाउंटिंग का, कैलकुलेशंस का काम होता है. इसमें हम डिफरेंट फार्मूलाज यूज़ करके अपनी कैलकुलेशंस कर सकते हैं. वी कैन ड्रॉ द चार्ट, वी कैन ड्रॉ द पिवट टेबल और डिफरेंट हमारे पास चार्ट्स अवेलेबल हैं, जैसे कि पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, देन लाइन बार्स. अलग अलग तरीके के फॉर्मेट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं. और एक फार्मूला एक सेल पे लगा के हम उस फार्मूला को मल्टीपल कॉलम्स में यूज़ करते हैं. तो आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अगर आप साथ में देखोगे तो एक शीट खुली हुई है जिसमें कि जो आपका पेज है वो डिवाइडेड है इनटू रोज़ एंड इनटू कॉलम्स. तो इसके अंदर हम डेटा फिल कर सकते हैं और फिल करके हम फार्मूलाज की हेल्प से अपना जो न्यूमेरिकल एनालिसिस है वो कर सकते हैं. और एक ही डेटा पे हम मल्टीपल एनालिसिस करके अलग अलग रिज़ल्ट्स जो हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं. और इसके अंदर एक जो शीट है इसको हम बोलते हैं एक्सेल शीट और वर्कबुक. और डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं. सिर्फ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल ही नहीं है, हमारे पास लोटस 1, 2, 3 है. और भी बहुत सारे जो हैं वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि आप नेट पे फाइंड कर सकते हो. नेक्स्ट आपका प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है. प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर आपका यूज़ होता है जबकि आपने कोई भी प्रेजेंटेशन बनानी है और आपने उस प्रेजेंटेशन को वाइड ऑडियंस में प्रेजेंट करना है. तो प्रेजेंटेशन के लिए भी आपके पास अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं, अलग अलग टेम्पलेट्स अवेलेबल होते हैं. लाइक यू हैव माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट, कोरल प्रेजेंटेशंस
और इसके अंदर हम क्या क्रिएट करते हैं, इसके अंदर हम स्लाइड्स क्रिएट करते हैं। इसमें डिफरेंट टेम्पलेट्स होते हैं, डिफरेंट लेआउट्स होते हैं, डिफरेंट स्लाइड डिज़ाइंस होते हैं, और स्लाइड्स को जोड़ के हम एक प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। उस प्रेजेंटेशन के अंदर हम एनिमेशंस डाल सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इफ़ेक्ट्स डाल सकते हैं, साउंड्स ऐड कर सकते हैं, और भी कई फीचर्स हैं जिनके साथ कि हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार कर सकते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो, मैं आपको प्रेजेंटेशन से पढ़ा रही हूँ। दिस इज़ द प्रेजेंटेशन विच आई हैव मेड यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। फिर आप सभी को पता होगा कि जितने भी हम आजकल सॉफ्टवेयर्स यूज़ करते हैं, हम उन सॉफ्टवेयर्स को अपने अपने मोबाइल्स में भी यूज़ करते हैं। जब भी जितने भी हमारे पास स्मार्टफोन्स हैं, उन सब में ऐप्स का यूज़ होता है। तो उन ऐप्स को इंस्टॉल करने के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए होता है। तो ये जो मोबाइल एप्लीकेशंस होती हैं, ये किन में ऑपरेट करती हैं, या तो आपके पास टैब्स होने चाहिए या आपके पास स्मार्टफोन्स होने चाहिए। और जैसे आपके डेस्कटॉप्स का या लैपटॉप्स का ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वैसे ही आपकी जो मोबाइल्स हैं, इनके अंदर भी ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है। तो आपके जो ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल्स में यूज़ होते हैं, उनको हम बोलते हैं एंड्रॉयड, और जो आपके एप्पल के उसमें यूज़ होते हैं सिस्टम के अंदर, वो होते हैं आपके iOS और योर मैकिंटॉश ऑपरेटिंग सिस्टम। Each application is developed for the specific mobile device operating system. एंड्रॉयड के लिए अलग एप्लीकेशंस डिज़ाइन होती हैं और मैकिंटॉश एप्पल के लिए अलग डिज़ाइन होती हैं। और ये जो वेबसाइट्स आर नाउ ऑफरिंग मोबाइल फ्रेंडली इंटरफेसेस टू रन ऑन द मोबाइल डिवाइसेस। जो ऐप्स अपने आप डेस्कटॉप में यूज़ कर सकते हो, उनको आप मोबाइल में भी यूज़ कर सकते हो। So students, that's all for today. Rest we will continue to learn in the next lesson, which will be on the types of operating systems. So thank you students. If you have any query, you can call me on my number. That is, you can take it from me, and if you have any suggestions, the suggestions are also welcome. Thank you one and all. Thank you so much.